Now next, question number 29. Now what exactly values are given? So x is a rational and 0 irrational. Second, g of x rational and x irrational, and accordingly it gives us the values. Now see beta, हमें ढूंढना है कि f माइनस जी ये कैसे टाइप का फंक्शन. सो जब हम लोग f माइनस जी की बात करेंगे तो ये हमें दो वैल्यूज देगा. सो f माइनस जी के लिए हमें जो दो वैल्यूज मिले, पहले x माइनस 0, सो x, देन 0 माइनस x minus x, when is equal to x, that time x is rational, and when minus x, it means x is irrational. rational भी है और साथ साथ irrational भी है. It means function gives us the answer 1 1. So, function gives us the answer 1 1 and on 2. Now move on to question number 30. What exact values are given? So f of x is equal to sin inverse x upon x. अभी चेक करते बेटा ये रैशनल फॉर्म को, दैट इज sin इनवर्स x अपॉन कितना है x. तो sin इनवर्स x क्या है? sin इनवर्स x ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और साइन इनवर्स x अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सो इट हैज द डोमेन. कहाँ से रहनी है उसकी डोमेन? सो -1 से लेके तो +1 इंक्लूडिंग. ठीक है, इंक्लूडिंग कहाँ से कहाँ तक? सो -1 से लेके 1 तक. पर ये रैशनल फंक्शन होने के कारण इसका डिनोमिनेटर क्या नहीं रहने को होना, तो डिनोमिनेटर x विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी डोमेन को कवर तो करना है -1 से लेके तो +1 तक, पर 0 भी नहीं आने को होना. इट मीन्स अवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज -1 to 1 बट एक्सक्लूड 0. Now question number 31. What exactly given in the question number 31? Set A has how many elements? So 3 elements. Set B has how many elements? So 4 elements. And it means the number of इंजेक्शन. हर एक बार, कल इसी पैटर्न का क्वेश्चन आया था, उसमें समथिंग डिफरेंट था. हर एक बार कभी नंबर ऑफ रिलेशन पूछ रहा, कभी नंबर ऑफ फंक्शंस पूछ रहा. तो आप याद रखोगे, यहाँ पे पूछा जा रहा हाउ मेनी नंबर ऑफ इंजेक्शंस आर देयर. So to find the number of injections, we are using the formula for permutation. So 4 elements in set B. Permutate with the 3 elements in the set A. As we all know that from the permutation, that is our standard formula, NPR is equal to n factorial upon n minus r factorial. What is our formula? n factorial upon n minus r factorial. So value of n is 4 factorial upon 4 minus 3 factorial, and 4 minus 3 factorial it means 1 factorial. 1 factorial has value 1. बचा ये 4 factorial को कर सकते बेटा हम लोग 4 into 3 into 2 into 1. 4 into 3 12, 12 into 2 24, 24 into 1 24. It means our most appropriate and correct option is option number C. Now move to the question number 32. What exactly given in the question number 32? So value of f of x is equal to 1 upon log to the base 10 1 minus x plus root of x plus 2. Get it my point? x plus 2. अभी एक एक टर्म को सॉल्व करके, अगर ये कंपोजिट है तो हमें पता है कंपोजिट फंक्शन का डोमेन जो है वो दोनों फंक्शन मिला के देंगे ना. फर्स्ट वन इज, यहाँ पे पहला है रूट ऑफ x प्लस 2.
and square root never containing the negative number, because root of negative, it means the number is imaginary. So this is greater than or equal to 0. Squaring on both sides or taking a square, we are getting our value in the form of x plus 2 greater than or equal to 0. It means x greater than or equal to कितना हुआ? So greater than or equal to minus 2. Now next one, 1 upon जो है वो 1 upon वाली टर्म जो अपनी वो रेसिप्रोकल है, एंड रेसिप्रोकल फंक्शन में डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0. सो व्हाट एग्जैक्टली इज हियर? log of 1 minus x to the base 10 is not equals to 0. ठीक है. सो अपॉन में log 10 है, log 10 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाइंग में 0 0 बन जाएगा. सो log of 1 minus x is not equals to 0. Now for cancellation of log, taking the exponential, it means we are getting 1 minus x is not e to the power 0, and e to the power 0 has value 1. So 1 minus x not equals to 1. So x is equal to, next value क्या मिल जाएंगी हमें? x is equal to 0. ठीक है. यानी कहाँ से कहाँ तक चलेंगे बेटा हम लोग? तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 यानी हमारा पॉइंट हुआ 0 फर्स्ट टर्म. आगे बढ़ेंगे हम लोग, -2 यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, एंड अकॉर्डिंगली गिव्स अवर आंसर. नाउ इट मीन्स हमारे पास मोस्ट अप्रोप्रिएटली जो आंसर जा रहा ये ओपन ब्रैकेट है बेटा. हम लोग जनरली ओपन ब्रैकेट कुछ इस अंदाज में लिखते हैं. सो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट ये ऐसा, सो -∞ to 1 एंड देन -0, और फिर वैल्यूज कहाँ से कवर करना है? फ्रॉम द -2. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 33. फंक्शन जा रहा फ्रॉम a to b जा रहा, एंड सेकंड वन फंक्शन मूव कहाँ पे हो रहा? सेकंड फंक्शन जी इट मैप फ्रॉम b to a. और फंक्शन कैसा है? तो फंक्शन बाइजेक्शन है. बाइजेक्शन का मतलब ही हुआ फंक्शन कैसा रे बेटा? तो फंक्शन 1 1 भी है और साथ ही साथ फंक्शन ऑनटू भी है. तो फंक्शन 1 1 है, इसका मतलब एवरी एलिमेंट इन अ सेट A हैज इमेज इन अ सेट B, एंड एवरी एलिमेंट इन अ सेट B हैज प्री इमेज इन अ सेट A. ठीक है. इसका मतलब f का इनवर्स कौन बन जाएगा? B, which is representing as IB, inverse B. Now, next question number 34. What exactly given in the question? So, f of x minus 1 upon x is equal to x square plus 1 upon x square. This value is given. So, ये देखिए, अगर हम लोग कुछ ऐसा ले ले कि x minus 1 upon x, this value is equal to consider as a z. ठीक है, क्या बोला मैंने? Let just consider कि x minus 1 upon x is equal to कितना कंसिडर करना है? z. Now squaring on both sides. So after squaring, as we know that according to the result, x minus 1 upon x whole square means x square plus 1 upon x minus 2, this value is equal to z square. Therefore, we are getting x square plus 1 upon x square is equal to z square plus 2. समझे टर्म को? अगर ये आपके पास टर्म चलती आ रही कि f of z is equal to z square plus 2, इसी का मतलब f of x is equal to कितना हो जाएगा? x square plus 2, which is in our option number D. Move on the next one. It's a question number 35. Which of the following binary operation
is commutative. So first of all, it is very important to know कि क्या होता है commutative. Commutative का मतलब होता है बेटा, if I write A into B, this also means B into A. अगर पोजीशन चेंज करने के बाद सेम ही आंसर आपको मिल रहा तो उसे कहा जाता है कम्यूटेटिव. एंड ऑब्जर्व ऑल दिस. हमारे पास क्लियर नजर आ रहा ऑप्शन सी, विच मीन्स पावर सेट. डेल्टा कहाँ पे है? ऑन पावर सेट. सो पी ऑफ एस में, वेयर पी ऑफ एस क्या डिनोट कर रहा? दैट इज पावर सेट ऑफ एस. यानी ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए. कोई फर्क पड़ता है क्या जब आप इंटरसेक्शन लेते हो? तो आपने ए और बी का इंटरसेक्शन लिया तब भी आपको वही आंसर मिलेगा, और आपने बी ए का इंटरसेक्शन किए तब भी आपको वही आंसर मिलेगा. इसका मतलब इट आल्सो बी रिटन एज बी माइनस ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी, विच इज नथिंग बट द बी डेल्टा ए. सो दिस इज बी डेल्टा ए. और अगर इसे हम लोग बी डेल्टा ए लिख पाते हैं, सो दिस ऑपरेशन सेटिस्फाई आवर कम्यूटेटिव ऑपरेशन. नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 36. सो व्हाट एग्जैक्टली इन द क्वेश्चन नंबर 36? The modulus function f of x is not 1, is it correct? Modulus, अगर मैं बोलूँ f of 1, so that is mod of 1, which gives us the answer 1. अगर मैं बोलूँ f of minus 1, that is equal to mod of minus 1, which again is equal to 1. It means यहाँ पे 1 minus 1 2 minus 2 और यहाँ पे चल रहा 1 2 3 4. तो हमारे पास मैपिंग कैसे? 1 gives the answer 1, minus 1 gives the answer 2, gives the answer 2, minus 2 gives the answer 2. It means a single element in A has not the different images in the B. So ये हो गया आपका many one फंक्शन. ये हमारे लिए कौन सा फंक्शन हो गया? many one फंक्शन हुआ. और हमको बोला भी वही है बेटा कि ये 1 1 नहीं, 1 1 नहीं है तो वो many one रह सकता, ऑन टू रह सकता. यानी असरेशन जो है वो करेक्ट. दूसरा, the negative real numbers are not the image of any real numbers. The negative real numbers are not the image of any real number. क्या ये सही है? तो हाँ ये भी सही है, पर क्या है? assertion is true, reason is also true, but reason does not explain the assertion. कोई एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर. मूव करते हैं ऑन द क्वेश्चन नंबर 37. सो बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 37, जस्ट चेक आउट व्हाट एग्जैक्ट वैल्यूज आर गिवन. सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1. ये वैल्यू देखिए बेटा, हमें वैल्यू देखिए एफ ऑफ एक्स की और हमें ये इतनी वैल्यू निकालना है. चलो, सो f of x plus 1 upon f of x minus 1 और प्लस कितना है x. डालो वैल्यूज. सो वैल्यूज आर x minus 1 upon x plus 1 plus 1 upon again the value of f of x minus 1 upon x plus 1 minus 1 और प्लस कितना हुआ x. क्रॉस कराने के बाद नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर कटने वाला है, हम लोग कंसीडर करके पहले ही चला लेंगे. सो x माइनस 1 ये इधर क्रॉस हुआ यानी x प्लस 1 अपॉन ये डिनोमिनेटर बाद में कैंसिल होने वाले ही है. सो x माइनस 1 इंटू दिस टर्म, सो माइनस x माइनस 1 और प्लस कितना चल रहा x. नाउ सी क्या क्या काट छाट होगी. -1 + 1 get cancel, plus x minus x get cancel. It means what is left
so x plus x twice x, minus 1 minus 2, now plus x, now 2 get cancel, x upon minus 1 minus x plus x, which is equal to 0, and which lies in our option number A. Now move to the second one, question number 38. So what is the value again given in the question number 38? So f of x is equal to x minus 1 upon x plus 1, और हमें देखना है कि कौन सा करेक्ट हो रहा किसके लिए, फॉर f कंपोज f of x के लिए. चलो निकालते हैं. सो f of x, f of what is the value of f of x? So x minus 1 upon x plus 1. Put this value again in your f of x, so values become x minus 1 upon x plus 1 minus 1 upon again the value of x minus 1 अपॉन x प्लस 1, और प्लस कितना होना है यहाँ पे 1. चलो सॉर्ट आउट करा लेते हैं. सो x माइनस 1 इंटू डिनोमिनेटर, सो माइनस x माइनस 1 अपॉन दिस 1 x माइनस 1 प्लस x प्लस 1. नाउ यहाँ पे देखिए बेटा, प्लस x माइनस x गेट कैंसल, minus 1 it becomes minus 2. Minus 1 plus 1 get cancel, x plus x twice x, again 2 get cancel. What is left here? So here left minus 1 upon x, which is in our option number C. Move on the next question. Next question बेटा, question number 39. क्या ढूंढना है? Which one of the following is neither even nor odd? तो अभी आपको लगे हाथ ये भी बता देती हूँ कि व्हाट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस ऑड एंड इवन. सो बेटा जब हम लोग इवन फंक्शन है ऐसे बोलते हैं, वो समय पे f ऑफ माइनस एक्स गिव्स अस द वैल्यू f ऑफ x, और जब हम लोग f ऑफ माइनस एक्स को आंसर माइनस f ऑफ x लिखते हैं, इट मीन्स आवर फंक्शन इज ऑड. You get it my point? What is mean by even and odd? So let's have, अगर मेरा फर्स्ट फंक्शन f of x, सी फर्स्ट ऑप्शन की f of x is equal to x square minus 1, so f of minus x is equal to minus x square minus 1. But as we know that minus x square is x square. So x square minus 1, which is the value of f of x. It means given function कैसे बन गया? even ही बना. समझे? सेकंड ऑप्शन को परचेज करते हैं. सेकंड ऑप्शन है f of x is equal to x plus 3 upon x. अभी मुझे ढूंढना है f of माइनस एक्स, सो माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स, माइनस को बाहर बुला लेते हैं, सो दिस इज माइनस f of x. इट मीन्स क्लियरली फंक्शन इज ऑड. फर्स्ट निपट गया, सेकंड निपट गया, अभी निपटाते हैं थर्ड को. थर्ड ऑप्शन मॉड ऑफ x, सो मॉड ऑफ x is equal to x, mod of minus x is again, it means function is even. So बच्चा कौन रे बच्चा बेटा? सिर्फ d, that is x square in bracket x minus 3, which is neither even nor odd. Move on the next question, question number 40. What exact values are there? ठीक है, एक एक धीरे धीरे वैल्यूज को कवर करो. सबसे पहले देखे हैं f of x is equal to ax plus b, and second one g of x is equal to cx plus d. है दो वैल्यूज, हमें ढूंढने किसे जाना है? तो हम लोगों को ढूंढने जाना है f of g of x which is equal to g of f of x.
ठीक है, वैल्यूज पुट करो बेटा. सो व्हाट एग्जैक्टली वैल्यू? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स यानी सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी क्या? तो ए एक्स प्लस बी. समझ रहा? नाउ सी, पर एफ ऑफ एक्स है ए एक्स प्लस बी और हमें एफ ऑफ सी एक्स प्लस डी की वैल्यू होना है. इसी का मतलब हम लोग कैसे लिखेंगे? ए इन अ ब्रैकेट सी एक्स प्लस डी प्लस बी इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स की वैल्यू अगर सी एक्स प्लस डी है तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी? सी इन अ ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी. यू गेट इट माई पॉइंट? नाउ मल्टीप्लाई द ब्रैकेट. So ACX plus AD plus B is equal to, this is also ACX plus BC and plus D. So here also plus D. Now see, ACX get cancel. What is left here? Here left AD plus B is equal to BC. Sorry. Here CB. So CB plus D. अगर AX plus B F of X था तो AD plus B यानी कितना हुआ? F of D हुआ. अगर CX plus D यानी G of X था तो CB plus D यानी कौन हुआ? तो G of B हुआ. Now which option containing this, that is F of D is equal to G of B, that is containing in our option number D. Move to the next one, question number 40. क्या क्या बोला है उस पर फोकस करा लेते बेटा फटाफट. क्वेश्चन नंबर 41 हमें बोल रहा कि F में डोमेन है. क्या डोमेन कंटेन कर रहा? सो 1 2 3 1 2 3 कोडोमेन जा रहा, इम्प्लाइज कर रहा. किसे इम्प्लाइज कर रहा? ए बी सी डी, इसे इम्प्लाइज करा रहा. ठीक है, अभी देखिए कहाँ से कहाँ जाना. 1 के लिए इमेज कौन दे रहा? ए दे रहा. 2 हैविंग द इमेज बी, 3 हैविंग द इमेज सी. अरे बेचारा डी बच गया जिसकी प्री इमेज ही नहीं मिली. इट मीन्स फंक्शन 1 1 है बट क्या नहीं है? नॉट ऑन टू. फंक्शन 1 1 है पर क्या नहीं है? ऑन टू नहीं है. और हमें उसका इनवर्स देना, हैज नो इनवर्स. तो करेक्ट है ना बेटा कि फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए फंक्शन मस्ट बी 1 1 एंड फंक्शन मस्ट बी ऑन टू. सो इसका मतलब हैज नो इनवर्स. हमारे पास आर क्या दिया हुआ है? फंक्शन एफ इज नॉट 1 1. देखो असरेशन इज टू, रीजन इज टू, रीजन एक्सप्लेन द असरेशन. नहीं, जरूरत ही नहीं थी. यहाँ पे हमें क्लियर पता था कि फंक्शन 1 1 है पर फंक्शन ऑन टू नहीं है. इसका मतलब फंक्शन इज नॉट 1 1, ये सही नहीं है. सो विच वन इज अ करेक्ट? सो असरेशन इज ट्रू एंड रीजन इज रॉन्ग. कि फंक्शन कैसा मिल रहा हमें? 1 1 मिल रहा ना. नेक्स्ट की तरफ बढ़ते. देखो सिंपल है क्वेश्चन नंबर 42. फंक्शन देखे कहाँ से कहाँ तक चल रहा? तो R to R चल रहा. डिफाइन किससे हो रहा? तो f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर कितना है? तो टू द पावर है 35. और हमें ढूंढना है कि फंक्शन क्या क्या है. चलो ढूंढते हैं. नाउ सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर कितना? 35. मुझे पावर 35 को वहां से हटा लेना है. इट मीन्स टेकिंग द 1/35 पावर, दिस बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 1. Therefore only x square is equal to y to the power 1/35 minus 1. Therefore x is equal to under root of
y to the power 1/35 और यहाँ पे आ जाएगा -1. X is equal to root of term is there. It means accordingly you select your option because your function is belongs to the real number Now move on the next one, that is question number 43. क्या निकालना है? तो to find the value of g inverse of x. G of x has value 2x plus 5. Let consider g of x is equal to y. So y is equal to 2x plus 5. So y minus 5 is equal to twice x. So x is equal to y minus 5 upon 2. It means in the form of g inverse of x. Our most appropriate answer is option A. देखते हैं next इसमें. Now question number 44 बेटा, which is asked in a NDA first examination 2017 in the set number A, question number 96. So what exactly given? Value of f of A is equal to a minus 1 upon a plus 1. And we need to find some value. So let first find out f of twice a. It means twice a minus 1 upon twice a plus 1. Let consider as a number 1. Get it? Second one is f of a. f of a plus 1. It means a minus 1 upon a plus 1 plus 1. That is equal to, cross the term. So a minus 1 plus a plus 1 upon a plus 1 plus 1 minus 1 get cancelled, and a plus a twice a upon a plus 1. Is it match equation 1 and 2? Is it match equation 1 and 2? So no, it means first is incorrect. First correct नहीं है. Move for the second one, and our second is f of 1 upon a. So that is equal to 1 upon a minus 1 upon a plus 1. Cross the term. So we are getting 1 minus a upon a, 1 plus a upon a. A get cancelled. So what is left? 1 minus a upon 1 plus a minus tick bar. So what is bracket? A minus 1 upon a plus 1, which is nothing but the minus f of a. It means only option 2 is the correct one. Now move to the question number 45. Which of the following function कहाँ से कहाँ तक जा रहा? टू आर जो कि क्या रहने को होना? इंजेक्शन. इट मीन्स 1 1. देखिए बेटा, सिंपल सी बात है. मॉड ऑफ एक्स की अगर मैं बात करूं, विच इज इन योर ऑप्शन नंबर ए, तो मॉड ऑफ 1 लिखते हो तब भी आप 1 ही लेते हो, मॉड ऑफ 1 लिखते हो तब भी आप 1 लेते हो. यानी मॉडुलस फंक्शन आपका मिनी 1 हो गया. तो आपका फर्स्ट ऑप्शन गलत हुआ. जब आप लोग सेकंड के बारे में सोचते हो कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो जब आप लोग एक्स स्क्वायर ये टर्म देते हो तभी भी आपको पता है 1 स्क्वायर 1 एंड माइनस 1 स्क्वायर आल्सो 1, यानी ये भी मेनी 1 हुआ. f of x is equal to 11, f of x is equal to 11 is itself a कांस्टेंट फंक्शन. ये कौन सा फंक्शन है? तो कांस्टेंट फंक्शन है. और अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है तो ये भी 1 1 नहीं है, क्योंकि अगर मैंने बोला मेरे पास की जो लाइन जा रही वो y इज इक्वल टू 11 है, तो लाइन कुछ इस तरीके से जाएंगी. देखो कितने सारे टर्म मिलेंगे. यानी ये बच्चा कौन सा आपका ऑप्शन नंबर डी. नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट एग्जैक्टली वैल्यूज आर गिवन? हमें निकालना है f कंपोज g ऑफ x का इनवर्स. पहले उसी को निपटा लेते हैं. f कंपोज g कितना? तो f ऑफ g ऑफ x, बट द वैल्यू ऑफ
g of x is x cube plus 5 and the value of f of x is, so 2 in a bracket x cube plus 5 and minus कितना 3, मैंने अंदर वैल्यू डाले, so multiply this 2 into x 2x cube plus 2 into 5 10 minus 3, it means y is equal to 2x cube plus कितना हुआ 7, प्लस 7 को शिफ्ट करा लो बेटा, कन्वीनियंट हो जाएगा वो ज़्यादा, सो हमें मिलेगा y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x क्यूब, सो x क्यूब इज इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन 2, सो x इज इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन 2 टू द पावर कितना 1/3. सिलेक्ट द ऑप्शन, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस रिप्लेस बाय द x, सो x माइनस 7 अपॉन 2 टू द पावर 1/3. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, दैट इज f of x is equal to mod of x minus x cube. So f of x, this value is equal to mod of x minus x cube. So f of minus x, that is equal to mod of minus x minus mod of x cube. But as we know that mod of minus x यानी x माइनस x का क्यूब हुआ बेटा माइनस x क्यूब, जैसे का वैसा ही रहा, ये माइनस ऑफ माइनस बना प्लस और प्लस x क्यूब, कोई किसी के साथ मैच नहीं, ना ऑड है ना इवन है, इट मीन्स मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज नाइदर इवन नॉर ऑड. मूव टू द नेक्स्ट वन, व्हाट एग्जैक्टली गिवन, f कंपोज g ऑफ x लेना है, तो पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं f ऑफ g ऑफ x. सो f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू देखिएगा कितनी है, सो 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी है, तो ये f ऑफ की वैल्यू है ना, हमें f ऑफ x की वैल्यू पता है, सो log ऑफ इन अ ब्रैकेट 1 प्लस x replaced by all these bracket, it means 3x plus x cube upon 1 plus 3x square and upon 1 minus 3x plus x cube upon 1 plus 3x square. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लीजिए बेटा, so we are getting log of in a bracket 1 plus 3x square plus 3x plus x cube upon 1 plus 3x square and upon here again the cross, so 1 plus 3x square minus 3x minus x cube upon 1 plus 3x square, क्या कैंसल होते हुए क्लियर नजर आ रहा आपको, सो 1 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन के गेट कैंसल, ढंग से अगर लिखूं तो लॉग ऑफ इन अ ब्रैकेट ये बन रहा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये बन रहा 1 माइनस 3x देन प्लस 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब. It means this term gives us the answer for the a plus b. It means we are getting log of 1 plus x whole cube upon 1 minus x whole cube. ठीक है, अभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का क्यूब है, सो लिखेंगे कैसे, log of in a bracket 1 plus x upon 1 minus x and then its cube. पर हमें तो पता है log of a to the power m कितना, तो m log a, यानी ये बना कितना, तो 3 log of 1 plus x अपॉन 1 minus x, पर 1 plus x अपॉन 1 minus x क्या है हमारा, तो ये f of x है, यानी ऑप्शन कौन सा हुआ, 3 times of f of x. These are some questions which are based on the completely function to crack the NDA examination based on the function. 49 से लेके 53 तक, these are some questions which is for you. If any doubt, any difficulty, then ask me on the group. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा.
Then 54 to question number 57, again for you practice. And last but not least, up to the question number 64, these are all the questions for practice, because practice makes the man perfect.